Morning students, I am your assistant teacher of standard 7th and our today's topic of chapter 4 from your history part is the Mughals is religious policy of Akbar. So in the previous class we have already discussed about Akbar and his relationship with Rajputs. So let's start the topic without wasting time. Akbar's liberal approach towards religion was guided by an enthusiasm to unite the entire nation. He combined the best feature of all the religion to come up from his own version of the ideal faith known as Deen-e-Ilahi, which was an ethical code of conduct and laid emphasis on moral values of good conduct, pity and compassion. It was viewed as a religious come ideological path based on religion rather than tradition and on certain commonalities found in other all religion. Its believers were more like a fraternity and its main concern was socio-political rather than over religious. All people at his court did not accept Akbar's religious path. Raja Birbal, a faithful follower of Akbar, accepted his religion while Raja Man Singh disapproved of it. Akbar respected their feeling and did not insist that they should follow the new religion. Akbar believed in the policy of Sul-e-Kul, which means universal peace or peace with all. He abolished many taxes that were earlier imposed on the non-Muslim subjects. The practice of forcibly conversion of prisoners of war to Islam was stopped. Many intellectual and able Hindus were inducted into the nobility. In his eagerness to learn about different religions, Akbar built a hall of prayer at Fatehpur Sikri in 1575 known as Ibadat Khana. At this place, he invited select mystics, intellectuals, and theologians and held discussions on religious and spiritual themes. He invited teachers of various religions like ulemas, pandits, Zoroastrians, Christians, and even atheists, or those who did not believe in the existence of God. They visited the Ibadat Khana and discussed their religious beliefs with him. The result of these discussions at the hall of prayer led him to the conclusion that all religion lead to the same goal. देखेंगे, ध्यान से इस चीज को समझेंगे. अकबर का जो रिलीजियस पॉलिसीज था वो बहुत अच्छा था. वो क्या किए, सारे रिलीजन्स में से जो कॉमन और अच्छी चीज़ें थी उसको निकाल कर वो एक आइडियल फेथ बना दिए दीन इलाही, जो कि एथिकल कोड बन गया. और इसमें रिलीजियस चीज़ें कम और आइडियोलॉजिकल पाथ ज़्यादा होते थे और वो सारे रिलीजन का कॉम्बिनेशंस होता था. यानी जो भी कॉमन चीज़ें हैं सारे रिलीजन में उसको लेके वो दीन इलाही बनाए. सारे पीपल जो उनके कोर्ट में थे राज्य में वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किए, जबकि उनका रिलीजियस पॉलिसी बहुत अच्छा था. लेकिन राजा बीरबल जो थे वो एक उनके बहुत ही भरोसनीय फेथफुल फॉलोवर थे. वो इस चीज़ को एक्सेप्ट किए, लेकिन राजा मान सिंह इसको डिसअप्रूव किए. तो वो क्या किए, बोले एक और पॉलिसी के बारे में कि वो सूल-ए-कुल मानेंगे, जिसमें क्या है कि एक यूनिवर्सल पीस, सबके लिए जो एक शांति का पीस के लिए जो भी लोग मानना चाहे वो मान सकते हैं. साथ ही साथ वो बहुत सारे ऐसे टैक्सेस को रिमूव किए जो कि नॉन मुस्लिम्स पे लगते थे सिर्फ, और वो जो भी बाहर से प्रिजनर्स को लाते थे जो कैदियों को, उसको ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल कराते थे. तो इस चीज़ को वो स्टॉप किए. साथ ही वो क्या किए, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल यानी जो भी जिनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है तो उन लोगों को, हिंदूज़ को, वो अपने नोबिलिटी में रखे. और साथ ही साथ वो एक हॉल ऑफ प्रेयर बनाए फतेहपुर सिकरी में, जिसमें क्या था, इबादत खाना, कि वहाँ पे वो सारे सेलेक्टेड मैजिस्ट्रिक इंटेलेक्चुअल्स, इन सारे लोगों को जो स्पिरिचुअली बहुत ज्ञान हो, नॉलेज हो, जिनको धर्म के बारे में, उन लोगों को वो बुलाते थे अलग अलग रिलीजन से, और वहाँ पर वो इस चीज़ को डिस्कस करते थे और वो विजिट भी करने जाते थे. और लास्टली फिर वो यही कंक्लूजन निकाले इस प्रेयर हॉल में
यानी इबादत खाना में कि सारे रिलीजन का गोल एक ही होता है, बस हम तरीका अलग अलग अपनाते हैं। अब हम पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में। तो जहांगीर कौन थे? अकबर के बेटे। Nasruddin Muhammad Jahangir, conqueror of the world, the eldest son of Akbar, succeeded him to the throne in 1605. He was born Salim. His father fondly called him Seku Baba, and he imprisoned his eldest son, Prince Khusrau, who wanted to become the emperor. He brought an end to the 4-decade-long struggle with Mewar by defeating the Rana in 1615 CE. He also subdued Musa Khan with his 12 confederates known as Bara Bhuyans, who controlled Sonargaon in Bengal. A number of people from Europe visited his court. These include William Hawkins and Sir Thomas Raw, who visited his court with the aim of securing trade concession. Following their visit, the English were granted permission to set up factory at Surat. Jahangir's 20th and the last wife, Noor Jahan, real name Mehrun-Nisha, was a talented, courageous and intelligent woman, and she exercised considerable influence in royal affairs. She promoted her family members to important posts in the administration and struck coins in her name during the last year of Jahangir's reign. Around the same time, a struggle for power began between Noor Jahan and Jahangir's son Prince Khurram, later Shah Jahan. Jahangir was deeply fascinated by art and architecture, and he was keen naturalist and bird watcher. His autobiography, Tuzuke Jahangiri, is a vital source of information about his reign. It is also recorded his detailed descriptions of plant and animals. हम जहांगीर के बारे में देखेंगे। जहांगीर का पूरा नाम नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर था। इनको कन्क्वेरर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था क्योंकि एक टाइम पे ये पूरे भारत पे राज कर रहे थे और पूरी दुनिया पे राज करने लगे। ये सबसे बड़े सन थे अकबर के और इनको राजगद्दी 1605 ईस्वी में मिली। इनका बचपन का नाम सलीम था और इसके फादर यानी अकबर इनको प्यार से सेकू बाबा कहते थे। उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे प्रिंस खुसराव को बंदी भी बना लिया क्योंकि वो राजगद्दी हासिल करना चाहते थे और इस तरह से स्ट्रगल चलता रहा। बहुत सारे यूरोप से लोग उनके कोर्ट पे विजिट किए, जिनमें विलियम हॉकिंस और सर थॉमस रॉ भी थे, जो कि ट्रेड में कंसेशन चाहते थे यानी डिस्काउंट चाहते थे। तो उनको वो डिस्काउंट भी मिला और साथ ही साथ परमिशन मिला कि वो सूरत में अपना फैक्ट्री लगा सकते हैं। जहांगीर की जो लास्ट वाइफ थी उनका नाम नूर जहां था। उनका रियल नाम मेहरून-निशा था। वो बहुत ही खूबसूरत थी, टैलेंटेड थी, करेजियस थी, हिम्मत वाली थी और साथ ही साथ इंटेलिजेंट वुमेन थी। और ये रॉयल अफेयर्स में मतलब राजघराने की चीज़ों में अपना इंटरफेरेंस देती थी, अपने हस्बैंड को हेल्प करती थी यानी जहांगीर को हेल्प करती थी और साथ ही साथ वो अपने फैमिली मेम्बर्स को भी इम्पोर्टेंट पोस्ट देती थी। अपने कॉइन्स पे ये अपना नाम लिखवाने लगी। फिर कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि दोनों नूरजहां और नूरजहां के बेटे प्रिंस खुर्रम, जो बाद में शाहजहां कहलाए, उन दोनों के बीच में पावर को लेके लड़ाइयाँ होने लगी। जहांगीर आर्ट आर्किटेक्चर्स के बहुत ज़्यादा शौकीन थे और वो नेचर और बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा ही बर्ड्स वॉचर थे। वो यानी बर्ड्स को बहुत अच्छे से वॉच करते थे, देखते थे और नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उनका ऑटोबायोग्राफी है तुजुके जहांगीरी, जिसमें सारा इन्फॉर्मेशन है और ज़्यादा करके उनके रेंज में यानी पीरियड में पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन है आपका प्लांट्स और एनिमल्स रिलेटेड। ना नेक्स्ट टॉपिक विल बी शाहजहां। शाहजहां के बारे में तो सबने सुना है। शाहजहां कौन थे? तो जिन्होंने ताजमहल बनवाया था, ठीक है। बट उसके अलावा भी शाहजहां के बारे में बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम समझेंगे और पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप यहीं तक रिकॉल करें, उसके बाद हम देखेंगे फिर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, लास्ट औरंगजेब, उसके बाद
हमारा नेक्स्ट है औरंगजेब, फिर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं. तो आई होप यू ऑल आर enjoying your chapter because this is very interesting chapter, not boring. Okay students, thank you and have a nice day.